اب بچوں میں مسئلہ یہ ہے کہ 9-10 کو چھوڑ کر اور الٹی سیدھی باتیں سن کر ان کی تربیت ہو جاتی ہے. وہ کس بات کو زیادہ غور سے سنتے ہیں کہ بھائی ڈگری ڈز ناٹ میٹر. بھائی ڈگری کیسے میٹر نہیں کرتی؟ ڈگری اس کاغذ کو نہیں کہتے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلانے ہیز ڈن ہز PhD اور ایم فل فرام دیئر اینڈ دیٹ. ڈگری اس ٹائم گزارنے کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے وہاں پہ ٹائم گزار کر سیکھنے کی کوشش کی ہے. وہ ڈگری اس پیسوں کی رسید ہوتی ہیں کہ ہاں بھی آپ نے پیسے خرچ بھی کیے ہوئے ہیں. وہ آپ کو ریئلائز کرنے کے لیے ہوتی ہیں. السلام علیکم. سیکھو فخر کے ساتھ. میں ہوں فخر عالم. گریڈ اور کنسپٹ سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھئی ہماری کہانی جو ہے وہ شروع ہیں اور ہم نے پوزیشن کی کہانی تقریباً کچھ سنا دی ہیں. پوزیشن میں ہم نے کہا کہ کسی چیز کی لوکیشن بتانے کو ہم پوزیشن کہتے ہیں. اچھا تو اب اگر اس چیز کی ہم پوزیشن نہ بتائیں یعنی اس کی جگہ نہ بتائیں تو اس کو اسکیلرز بولتے ہیں. اسکیلرز بھی بولتے ہیں اور اسکیلر فزیکل کوانٹٹی بھی بولتے ہیں. تو اس کو ہم ڈیفائن اس طرح کہیں گے کہ دوز فزیکل کوانٹٹیز which are completely described by magnitude only. بھئی اگر کوئی فزیکل کوانٹٹی ہے اور آپ اس کو صرف میگنیچیوڈ سے کمپلیٹلی ڈسکرائب کر سکتے ہیں سو دیٹ کوڈ بی ٹرم ایز ٹو بی اسکیلر. اب میگنیچیوڈ کو ذرا سمجھیں کہ میگنیچیوڈ کیا چیز ہے. میگنیچیوڈ میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اس کا سائز کہہ لیں جس کو ہم نمبر بولتے ہیں اور دوسرا ہوگا اس کا یونٹ. سائز بھی بولتے ہیں نمبر بھی بولتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ 3 kg شوگر، ٹھیک ہے بھائی، تو شوگر کو ڈسکرائب کرنے کے لیے میرے پاس دو ہی چیزیں کافی ہیں، اس کا نمبر اور اس کا یونٹ. کہ بھائی ہمارے پاس نمبر جو ہیں وہ 3K ہیں اور گرام جو ہے وہ اس کا یونٹ ہے. یا اگر آپ kg کو مطلب یونٹ لے لیتے ہیں اور 3 کو نمبر لے لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. اس چیز کو میگنیچیوڈ بولتے ہیں. اسکیلر بھی کہتے ہیں اور اس کو اسکیلر فزیکل کوانٹٹی آلسو ٹرمزڈ اسکیلر فزیکل کوانٹٹی. ساری کہانی فزیکل کوانٹٹیز کی ہے. اس کے جیسے ہم نے یہاں پہ کہا تو یہ جو کیا نام ہے میس ہیں، ہم نے یہاں پہ شوگر کا میس بتا دیا. اچھا اس کو میس بھی بولتے ہیں اور اس کو ماس بھی کہتے ہیں. امریکن اور انگلش کا جو فرق ہے، آج کل زیادہ تر لوگ جو ہے امریکن یوز کرتے اس کو میس بولتے ہیں کیونکہ آلسو ٹرم ایز ٹو بی ماس. ماس بھی ٹھیک ہے، ماس میں کوئی غلطی نہیں ہے. ماس ہے، اس طرح جو ہے ڈینسٹی ہے وغیرہ وغیرہ. جتنے بھی چیز ہیں جس کے لیے کسی ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہو، ناٹ نیڈیڈ ڈائریکشن، تو اس کو ہم کہیں گے اسکیلر. اب اگر میگنیچیوڈ کو بتاتے ہوئے آپ کی بات انکمپلیٹ رہتی ہیں اور کچھ اور چیز کی ضرورت ہے اور وہ چیز سمت ہو، ڈائریکشن ہو، تو اس کو پھر ہم اسکیلرز نہیں کہیں گے. یہ اسکیلرز جو ہیں اس کو ہم صرف کنٹراسٹ کو بتانے کے لیے یہاں پہ بیان کر رہے تھے، ورنہ ہمارا مین مقصد جو ہے وہ پوزیشن کے ٹاپک کو آگے بڑھانا ہے. جب ہم پوزیشن کو آگے بڑھاتے ہیں تو پوزیشن میں ہم نے بات کہی تھی کہ بھئی دیکھیں لیٹ سپوز کہ ہمارے پاس یہ کوئی ریفرنس پوائنٹ ہے. لیٹ سپوز اس کو ہم نے 0 اور 0 کا نام بتایا تھا. کمرے کا کوئی کونا ہے یا کوئی اس طرح کی ریفرنس پوائنٹ ہے، اس کو ہم ریفرنس پوائنٹ بولتے ہیں. اوریجن بھی بولتے ہیں، ریفرنس اور اوریجن بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے.
جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہ کمرہ ہے تو کمرے کا جو کونا ہے دیٹ از دا ریفرنس پوائنٹ. تو ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں اگر یہاں پہ کوئی پوائنٹ بتانا چاہیں اور اس پوائنٹ کا ہم جو ہے وہ الوکیٹ کریں 1 2 3 4 5 6 اس طرح یہاں بھی کریں اس کو 1 2 3 4 5 6 7 8 اس طرح جاتے جائیں جتنے بھی آپ کرنا چاہیں. اچھا اب دیکھیں اس پوائنٹ کو بتانے کے لیے اگر آپ غور کریں تو دیکھیں اس کو ہم بتا سکتے ہیں اس طرح کے یہاں پہ ایک وہ ڈرا کر لیں, زمین پہ ایک گرا دیں اور ایک اس دیوار پر گرا دیں, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو گن لیں 1 2 3 4 اور اس طرح 1 2 3 4 5 6. تو یہ والا ہم پہلے لکھیں گے جو زمین پہ ہیں, یہ ہے 6 اور 1 2 3 4 اور تقریباً آدھا, تو یہ ہو جائے گا 4.5. اب ہم نے اس کی پوزیشن بتا دی. اگر اس کو ہم 5 پہ کرنا چاہیں تو بہت سمپل ہیں, یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا, یعنی پوائنٹ پھر یہاں پہ آئے گا, یہاں پہ پھر پوائنٹ نہیں آئے گا, یہ اس طرح ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو پھر اس کی پوزیشن ہوگی 6 اور 5. اب یہاں پہ دیکھیں اس کو ہم نے اس کو بتا دیا ہے کہ بھئی اس کی پوزیشن کیا ہے 6 اور 5. لیٹ سپوز دس از پوائنٹ P. We can say that the possession نہیں کہنا چاہیے, پوزیشن کہنی ہے. پوزیشن آف پوائنٹ P is 6 5. The position of point P is 6, 5. دیکھیں یہاں پہ آپ نے فزکس سیکھنی ہے. ہم اس طرح میتھس میں ہم کیا کہیں گے, P equal 6, 5 بریکٹ, اور انگلش میں ہم کہیں گے the position of point is 6 unit and 5 unit. ہم اس طرح کہیں گے. لیکن فزکس میں اس دونوں کو شیک کر کے ہم جو چیز بنا لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں فزکس. کیسے؟ the position of point P is 6 and 5. دیکھیں یہاں پہ لٹریچر کی بات ہو رہی ہے لیکن ساتھ میں سمبل بتا دیا ہے, پھر جو ہے اس کو میتھمیٹکس بتا دیا, یعنی آپ لٹریچر کو اور میتھس کو کمبائن کر کے جو بات کرتے ہیں اس کو فزکس بولتے ہیں. آپ اس طرح نہیں کہیں گے the position of point is 6 5, نہیں, the position of point P is 6 5. اب کچھ بندے اس کا مذاق بنا لیتے ہیں کہ بھئی پوزیشن آف پوائنٹ پی اور لیٹ سپوز فخر ایف اور اس طرح شاہ سعود ایس وغیرہ وغیرہ یا علی اے یا باسط بی. ایسے نہیں ہیں, یہ اس لیے بتایا جاتا ہے کیونکہ پھر آگے جب آپ جائیں گے تو سائنس میں آپ کو بہت احتیاط برتنی ہوتی ہے. دس از ٹو مچ نیڈیڈ فار اس. ایسے نہیں ہے کہ ہم جو ہے تنگ کرنے کے لیے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں لیتے ہیں. انڈیا کا غالباً مشن اسپیس جو تھا وہ اسی وجہ سے فیل ہوا تھا کہ وہاں پہ انہوں نے اپنے سسٹم کو بنایا ہوا تھا FPS پر, فٹ پاؤنڈ سیکنڈ پر. غالباً وہ فرانس سے چیزیں منگوائی ہوئی تھی, لیکن یہاں پہ انڈیا میں کیونکہ برٹش طریقہ چل رہا ہے اور برٹش میں MKS ہے یعنی میٹر کلو گرام سیکنڈ ہے, تو جب انہوں نے اس حساب کو اس کیلکولیشن کے ساتھ میچ کیا سو انہیں یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ FPS کی کہانی چل رہی تھی اور یہاں پہ MKS کی کہانی چل رہی ہے. تو اس کی ریزلٹس جو تھے دیٹ ور ڈیواسٹیٹنگ, اور پورے غالباً 11 بندوں کا کریو جو تھا جو اسپیس پہ گئے ہوئے تھے تو وہ بلاسٹ ہو گیا, یعنی سارے جو ہے وہ جان بحق ہو گئے. تو اب اس طرح کے نقصان کی تلافی کرنا پھر ممکن نہیں رہتا کیونکہ وہ دیکھیں وہ سائنٹسٹ تھے, وہ پاورفل برین تھے. دیٹ پاورفل برین دیٹ از ٹو مچ نیڈیڈ. ایسے نہیں ہوتا کہ بھئی آپ ان کی جان اگر چلی جائے تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. اور یہی بات حدیث میں آئی ہے کہ عالم کی موت جو ہے وہ عالم کی موت ہے, کہ اگر ایک عالم مر جائے تو یہ ایسے ہے جیسے پوری دنیا مر گئی. یہ جو آپ کے پاورفل دماغ ہیں اس کو ان کے ساتھ آپ نے بہت احتیاط برتنی ہوتی ہے, اس کو آپ ایسے ضائع نہیں کر سکتے. تو دیکھیں یہ پوزیشن پوائنٹ P اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کئی اور ایک پوائنٹ ہو سکتے ہیں, کہ وہ P1 بھی ہو سکتا ہے, وہ PX بھی ہو سکتا ہے, وہ PZ بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم اس کو پوزیشن پوائنٹ P کا نام دیتے ہیں. دیکھیں اب جب ہم نے پوزیشن کی بات کی تو آپ ذرا غور کریں تو یہ بیسیکلی اس اوریجن سے کسی سمت میں کہانی جا رہی ہے.
इस सिमत की कहानी को यहाँ पे जब आप इसको डायरेक्शन ऐड कर लेते हैं तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को फिर कहते हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर की डेफिनेशन हम लिखेंगे, वेक्टर्स पहले हम लिखेंगे, इसको वेक्टर्स भी कहते हैं और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं। ठीक है भाई, कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are described by magnitude, direction, देखते जाएं, and obeys certain laws. Are term is to be vector physical quantity, are called, are term जो भी कहते हैं आप, वेक्टर्स। अब देखें, तीन चीजें हैं जिसकी आपने केयर करनी है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और तीसरी हैं कि जो ओबे कर रहे हों सर्टन लॉज को। ये सर्टन लॉज जो हैं ये कुछ बाकी आगे आगे आने वाली है। Remember, this vector cannot be covered in a single lecture. इस पे आके सारे फिजिक्स हैं और सारे साइंस में से मैं समझता हूँ कि 60% जो है वो ऑसिलेशन हैं और 40% जो है वेक्टर हैं। कुछ इसको उलट भी कर सकते हैं, बट रिमेंबर जब आप वेक्टर्स को और ऑसिलेशंस को समझ जाते हैं तो वेक्टर को समझ के आप 9 क्लास समझ गए हैं और ऑसिलेशन को समझ के आप 10 क्लास समझ जाएंगे। तो इन दो चीज़ों को आप जो हैं इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियस। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसको आसान पढ़ाओ या इसको लो लेवल पे पढ़ाओ, तो भाई लो लेवल पे हम वो बात कह सकेंगे कि जो बाद में आप उसको बंद भी कर सकें। अब एक चीज़ सामने आने वाली है और फिर आप उसमें कंफ्यूजन में पड़ने वाले हैं, तो बेहतर ये है कि थोड़ी सी तकलीफ़ खा के उसी लेवल पे वो बात कही दी जाए। ठीक है, एक बात हम बाद में भी कर सकते हैं, जैसे अब हम वेक्टर पढ़ाएंगे तो सारे वेक्टर को यहाँ पे हम ख़त्म नहीं कर सकते ना, सारे वेक्टर्स को अब मैं क्लास 9 में डिस्क्राइब करूँगा। लेट्स सपोज अब मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन बताऊँगा, तो भाई इसकी रिप्रेजेंटेशन में कहूँगा कि सिंबॉलिक भी इसकी रिप्रेजेंटेशन है और दूसरे इसकी हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मेरी राइटिंग जो है वो थोड़ी हल्की फुल्की है, एनी हाउ आप उसको बस किताब के साथ मैच कर सकते तो सही स्पेलिंग आपको वहीं पे मिल जाएंगे। और इसकी जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नोट्स वगैरह भी बना दूँ, पॉसिबल हुआ तो एक की भी बना लेता हूँ, मतलब अब उस पर काम जारी है, वो हो रहा है, कुछ 2-3 चैप्टर लिख भी लिए हैं, लेकिन उसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हो सकता है आपको जल्दी से मिल जाए। सिंबॉलिक इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है आपने क्या करना है कि किसी भी लेटर के साथ, स्मॉल लेटर के साथ या कैपिटल लेटर के साथ, लेकिन उसके ऊपर एरो हो। देखिए इस तरह, लेट सपोज विक्टर ए या इस तरह विक्टर बी, लेकिन आपने इसके ऊपर ये एरो ज़रूर लगाने हैं। अक्सर बच्चे यहीं पे गलती कर लेते हैं कि वो किताब को देखते हैं कि वहाँ पर जो है ए के ऊपर विक्टर का सिंबल नहीं है, जो कि वो गलती कर रहे हैं। ऐसे नहीं है भाई, वहाँ पे उसको बोल्ड किया गया होता है, यानी वो इस तरह लिखा होता है। मैं ज़रा आपको बताता हूँ, ये ए है और फिर इसको ज़रा बोल्ड करें, ये भाई ये हुआ अब विक्टर ए। ठीक है, तो अगर उन्होंने इस तरह का ए लिख लिया तो वो आपको इसके ऊपर विक्टर बता रहे हैं, लेकिन आप बार बार इस तरह नहीं कहेंगे, तो मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा, नॉट रिकमेंडेड। मैं इसको इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा कि बार बार आप उसको बोल्ड नहीं कर सकते। सो यू हैव टू एग्जैक्टली पुट द एरो ओवर देयर, राइट। आपने एरो को नहीं जो है वो इग्नोर करना कि भाई मैंने एरो को इग्नोर कर दिया, भाई बाद में अगर कोई मैं इसको जो है बोल्ड कर रहा था, तो आप बार बार मार्कर उठाएंगे, तो ये पॉसिबल फिर नहीं है, क्योंकि ये फिर बार बार आने वाली चीज़ है। तो इसको हम 2 तरीकों के साथ कर सकते हैं। एक तो ये है कि उसके ऊपर विक्टर लगा दें, तीर का निशान लगा दें, और दूसरा ये है कि उसको बोल्ड कर लें। लेकिन बोल्ड करने को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसी में सब बच्चे गलती खा जाते हैं और इसी में मार खा जाते हैं।
दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान है, आप एक तीर बना दें, उसका हेड जो होगा, उस तीर का हेड जो होगा वो वेक्टर के डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन की स्पेलिंग भी उल्टा सीधा लिख रहा हूं, फिर वो आप खुद ठीक कर लें, डायरेक्शन, ठीक है भाई। और इसका जो ये लेंथ है ये आपको बताएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। अब जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहली चीज जो है, जो कि प्रेमिलेयर में से है, यानी उससे यानी इससे पहले करने वाली चीज है, लेकिन वो मैं पहले इसलिए नहीं बता रहा ताकि पहले ये बनाऊं तब आप उस पर बात कर सकेंगे, वो है स्केल। आपने पहले स्केल बनाना होता है। देखें, अगर आप इसके लेंथ को मैग्नीट्यूड का नाम दे रहे हैं, आप इसके लेंथ को मैग्नीट्यूड का नाम दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उसके साइज को बता रहा है, उस नंबर को बता रहे हैं। अब हर एक नंबर इस बोर्ड पे या आपकी कॉपी पे या पेज पे पॉसिबल नहीं होता, तो आपने करना क्या है कि आपने वहां पे स्केल बनाना है। स्केल आपने किस तरह, लेट्स सपोज हम मीटर्स को बता रहे हैं, तो अगर मैं कहूं कि मीटर रेशो सेंटीमीटर, लेट्स सपोज अगर मैं कहूं कि 1 मीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर, तो बहुत सिंपल है कि भाई आप इसको नाप लें रूलर के साथ, नापना है। लेट्स सपोज ये हमारे पास है तकरीबन 17 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो है ये 17 मीटर की कहानी बता रहे हैं। अगर ये कोई नक्शा हो और वहां पर आपने साइड पे देखा होगा, यहाँ पे बिल्कुल कोने में लिखा होता है, एट द साइड, एट द डाउन साइड दे हैव रिटन, यहाँ पर अक्सर लिखा होता है, तो वो स्केल बता दिया होता है। अब बच्चों में मसला ये है कि 9-10 को छोड़कर और उल्टी सीधी बातें सुनकर उनकी तरबियत हो जाती है। और वो किस बात को ज़्यादा गौर से सुनते हैं कि भाई डिग्री डज नॉट मैटर। भाई डिग्री कैसे मैटर नहीं करती? डिग्री उस कागज़ को नहीं कहते जिस पे लिखा होता है कि फलाने हैज़ डन हिज PhD और MPhil फ्रॉम देयर एंड दैट। डिग्री उस टाइम गुजारने को कहते हैं कि भाई आपने वहाँ पे टाइम गुजार कर सीखने की कोशिश की है। वो डिग्री उस पैसों की रसीद होती है कि हाँ भाई आपने पैसे खर्च भी किए हुए हैं, वो आपको रियलाइज़ करने के लिए होती हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हैं कि भाई अगर एक बंदा मुझे कहे कि मैं आपके लिए लिख देता हूं कि आपने जो है वहाँ पे लाहौर यूनिवर्सिटी आपने मैट्रिक किया हुआ है, तो मैं उस पर खुश नहीं हूँगा क्योंकि मैंने वहाँ पे किया ही नहीं है। तो भाई ये डिग्री को छोड़ने वाले का फ़लसफ़ा जो है उसको आप छोड़ दें और ये चीज़ें सीख लें जो आपको डिग्री में मिल रही है। फिर कौन सी डिग्री सही है वो ठीक नहीं है, वो मेरे फिजिक्स का मसला नहीं है, लेकिन इस चीज़ को सीख कर ही देखें, आपको फ़ायदा मिलेगा कि जब आपको स्केल की समझ आ जाए तो किसी भी नक्शे को आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। वहाँ पे लेट्स सपोज लिखा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो अगर ये 17 हुआ और किसी नक्शे पे हैं और आपने उसको 17 से नाप किया और वो 17 सेंटीमीटर आया, तो इट मीन्स दैट इज 17 किलोमीटर। तो देखें ये बहुत सिंपल है और ये 9 क्लास में आप सीख रहे हैं। यहाँ पे बच्चे को जो सेकेंड ईयर में होते हैं यार, BS पास करके वो भी जो है नक्शे को नहीं पढ़ पाते, जबकि ये 9 क्लास में है। तो 9 क्लास की चीज़ को हम इतना मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ इसका मतलब अगर ये हुआ कि अगर ये 17 सेंटीमीटर है तो दिस नंबर हमने कहा था कि ये 17 सेंटीमीटर हैं। तो देखिए अब ये मैग्नीट्यूड हैं 1717 प्लस यूनिट, तो दिस 17 सेंटी और मीटर जो हैं ये दोनों मिला के आपके साथ हुआ मैग्नीट्यूड। दूसरी कहानी इसका डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन आपने बतानी है। भाई डायरेक्शन को बताने के लिए, डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। तरीके कई हैं जिनमें से हम 9 क्लास में 2 तरीके पढ़ते हैं। एक है जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, बस दोनों के साथ लिखे थे कोऑर्डिनेट सिस्टम।
जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारी कहानी बन जाती है न्यूज़ पर, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपकी कहानी बन जाती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। न्यूज़ कैसे कि नॉर्थ ऊपर हमेशा रहेगा, इस साइड पे ई हो जाएगा, इस साइड पे डब्ल्यू हो जाएगा और नीचे साउथ हो जाएगा। बस जब भी आपको नक्शा मिले तो उसमें नॉर्थ हमेशा ऊपर रहेगा। अब इस डिटेल में मैं नहीं फिलहाल जा रहा कि भाई नॉर्थ हमेशा ऊपर क्यों रहेगा, ठीक है भाई, वो उसमें लंबी कहानी है, वो फिर कभी कर लेंगे। तो अब हम जब भी आपके पास नक्शा मिले तो आपके पास दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो ये है कि वो साइड पे लिखा होता है 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, तो ये समझ ले कि आप वहाँ पे उन्होंने अंदाज़ा बता दिया कि हमारा ये स्केल कितना जूम आउट और जूम इन हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे आप इसको जूम आउट और जूम इन कर रहे हैं। देखें, जब चीज़ें लोग बनाते हैं, ड्राइंग वाले को भी मैंने देखा है कि भाई वो जो नापते हैं, सामने लेट सपोज किसी बिल्डिंग को बना रहे होते हैं तो वो पेंसिल को इस तरह कर रहे होते हैं, एक आंख बंद करके लेट सपोज उसको बना रहे हैं तो ये पेंसिल को इस तरह करते हैं, जितना उसका स्केल आता है उतना ही यहीं पे बना लेते हैं। फिर इस तरह बनाते बनाते वो पूरी सीनरी बना लेते हैं। दैट लुक वेरी अमेजिंग एंड वेरी आइडेंटिकल टू ईच अदर। यहाँ पे एक हज़ार यूनिवर्सिटी के बच्चे ने एक स्केच बनाया हुआ था, बच्चा तो नहीं था वैसे, बीएस का था, लेकिन हम सबको बच्चे ही बुलाते हैं। तो बीएस का एक स्टूडेंट था, उसके मैंने स्केच देखा हुआ था। सो देयर वाज अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन द एग्जैक्ट विच वाज द ओरिजिनल सीनरी एंड विच वाज पोर्ट्रेट बाय हिम। तो भाई ये बेसिकली ऐसे है कि उसने उस सीनरी को जूम आउट कर दिया है, ठीक है, तो जूम आउट करके वो यहाँ पे फिट हो जाता है। सो दैट इज टर्म हैज टू बी स्केल। आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अक्सर ये नक्शे के ऊपर यहाँ पे साइड पे इस तरह का एक लगा होता है, वो ज़रा मैं बना लेता हूँ। इस तरह की एक तीर लगा होता है, गूगल मैप में भी आपको दिखेगा, और यहाँ पे लिखा होता है एन। मतलब ये कि इस साइड पे नॉर्थ है। नॉर्थ आपको मिल जाए तो फिर और साइड्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। या इस तरह अगर हम सूरज को देख लें तो वहाँ पर भी हम अपना साइड जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि सूरज जो है वहाँ पे जो है ईस्ट है। अब अगर वहाँ पे ईस्ट हुआ, वहाँ पे मशरिक हुआ, तो आपको आपके लेफ्ट पे शिमाल आ जाता है, यानी लेफ्ट पे आपका नॉर्थ आ जाते हैं। बहुत सिंपल है भाई, सामने सूरज है, ठीक है भाई, तो लेफ्ट पे जो है शिमाल है। ये लफ्ज़ कुछ बंदे शुमाल बोलते हैं, ये अरबी का लफ्ज़ है शिमाल, यानी लेफ्ट साइड को बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ का साइड आपके लेफ्ट पे हुआ, तो लेफ्ट पे अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ के उलट जो है वो साउथ है। और अगर आपके फ्रंट पे ईस्ट है, यानी सूरज निकलने का मशरिक है, तो आपके बैक पे वेस्ट है। तो बहुत आसान है कि भाई आप उस नक्शे के हिसाब से खड़े हो जाए। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे हैं ये, तो मैं अपना लेफ्ट साइड उधर कर लेता हूँ, ये उधर, तो ये आपके तरफ जो मेरा साइड है ये फिर हुआ साउथ, और ये मेरा फेसिंग जो साइड है मशरिक यानी ईस्ट की, इसकी जानब, और मेरा बैक जो है दैट इज़ वेस्ट यानी मगरिब की तरफ। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। देखें, आप यहाँ पे फिजिक्स भी सीख रहे हैं और लाइफ भी सीख रहे हैं। ये ऐसे नहीं है कि फिजिक्स इज़ ओनली फॉर इट्स जस्ट अ बोरिंग सब्जेक्ट और आप इसको कहें कि भाई बस ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए। नहीं भाई, कभी भी नहीं। मैं समझता हूँ कि 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जिसको ओ लेवल और ए लेवल कहते हैं, सो दैट इज़ नेसेसरी फॉर अ मैन टू लर्न, कि जैसे एक मुसलमान के लिए इल्म ज़रूरी है। अब एक होता है मौलवी साहब बनना। मौलवी साहब बनता है 8 ईयर में, जो कि उसके बाद वो इल्म की किताबें पढ़ सकता है। और देखिए, अब ये आसान कोर्स उन्होंने निकाल दिया, दरासात दीनिया जिसे बोलते हैं, 4 साल का कोर्स है भाई, आजकल तो मेरे ख्याल में 3 साल का है। तो उसमें इतना होता है कि बंदा मौलवी साहब तो नहीं होता, लेकिन वो अपनी लाइफ दीन के मुताबिक गुजार लेता है। फिर वो लोगों को देखकर धोखा नहीं खाता, धोखा खाता नहीं है,
اور پھر جو ہے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ فلانے مسلمان نے ایسے کیا مجھے مسلمانوں سے نفرت ہے، فلانے تبلیغی نے ایسے کیا تو مجھے تبلیغ سے نفرت ہے، بلکہ وہ اوریجنل اسلام کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے کیریکٹر کو زیادہ فالو وہ نہیں کرتا، وہ خود اپنے کیریکٹر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں یہ او لیول اور اے لیول جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اے لیول کے بچوں کو دیکھتے ہیں اور جو ہے او لیول کے بچے کو دیکھتے ہیں، یا میٹرک اور ایف ایس سی کے بچے کو دیکھتے ہیں۔ بھائی وہ بچے ہمارے لیے ماڈل نہیں ہیں، کریکولم کو دیکھیں۔ بات سے بات نکلتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کریکولم جو ہے وہ پرانا ہو چکا ہے۔ بھئی کریکولم کے پرانے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے جو تھا وہ نیوز تھا اور جیوگرافیکل سسٹم تھا اور اب کچھ اور ہے، نہیں بھئی، وہی جیوگرافیکل سسٹم ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہیں کہ بھئی یہاں پہ اسفیریکل کوآرڈینیٹ سسٹم بھی ہیں تو بھئی وہ ہم آگے چیپٹر میں بتانے والے ہیں۔ یو ہیو ناٹ ٹو بی شو اوور اسمارٹنیس، ڈونٹ بی اوور اسمارٹ۔ بھئی وہ چیزیں آگے آ رہی ہے، وہ آپ کے لیول کی نہیں ہے، تو میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں ان کو، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم نے یہ بتا دیا کہ ایک ہے نیوز نارتھ ایسٹ ویسٹ اور ساؤتھ، اور اس کا دوسرا ہے وہ ہے کارٹیجن کوآرڈینیٹ سسٹم، اس کو ذرا ہم الگ سے کرتے ہیں تاکہ ہمیں آسان ہو جائے، کیونکہ یہ جیوگرافیکل کوآرڈینیٹ سسٹم تو بہت آسان ہے کہ نیوز ہے، اس میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے اسکیل اور دوسرا ہے کہاں چلا گیا کوآرڈینیٹ سسٹم، یہ بس دو ہی چیزیں جیوگرافیکل کوآرڈینیٹ سسٹم میں ہوتی ہیں۔ ناؤ ان دا کارٹیجن کوآرڈینیٹ، دیکھیں ہم کارٹیجن کوآرڈینیٹ سسٹم کی بات کر رہے تھے، کارٹیزین کوآرڈینیٹ سسٹم، this is for representing a vector in x and y plane۔ بھائی ایک ویکٹر ہے، پہلے ہم وہ اس کی ڈیفینیشن لکھ دیتے ہیں کہ بھائی دس از a system for representing a vector in x y plane، اور ساری کہانی وہ آپ لکھ لیں خود، وہ آسان ہے۔ ہاتھ ہیں اس میں خارش ہیں تو تھوڑی اس کو کم کر لیتے ہیں۔ a system for representing a vector in x y plane، یا ان ایکس وائی پلین کر لیں یا پلینز کر دیں تو بہتر رہے گا۔ یہ پلینز کی کہانی پھر میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ کیوں ایکس اور وائی میں کیوں نہیں لکھ رہا۔ دیکھیں ہم نے یہاں پہ جو بریکٹ میں آپ ایکس اور وائی ایٹسیٹرا لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ہم نے کہانی کی یہ ایک ہاریزونٹل ہے، ہاریزونٹل، جس کو ایکس ایکسس کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ اگر آپ کی وہ پوزیشن والی کہانی ہے تو اس کو ایکس ایکسس کہتے ہیں، اس کو ہاریزونٹل بھی بولتے ہیں اور اس کو ایبسیسا بھی بولتے ہیں، ایبسیسا ڈبل ایس اے بی سی آئی ڈبل ایس اے، اس کو ایبسیسا بھی بولتے ہیں۔ اس کو وائی ایکسس بھی بولتے ہیں، ایکسس، اور اس کو ورٹیکل بھی کہتے ہیں، اس کو ورٹیکل ایکسس بھی کہتے ہیں، وائی ایکسس بھی کہتے ہیں، اور اس کو آرڈینیٹ بھی کہتے ہیں، آرڈینیٹ۔ یہ غالباً گریک لیٹر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے آرڈر، ایکسس ہوتا ہے آرڈر، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ کارٹیجن کوآرڈینیٹ سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو پہلے جو ہے وہ کیلیبریٹ کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پہ آپ کا اوریجن ہوتا ہے، جیسے پہلے ہم نے ڈسکس کیا، اور یہ ہوتا ہے 0 اور 0 سے سٹارٹ، یہ کچھ اور سے بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے، بٹ اوریجن جو ہے موسٹلی 0 اور 0 سے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں بھئی یہ ایکس ایکسس جو ہیں یعنی ہاریزونٹل جو ہیں، اس کو ہم اس اسمال بریکٹ کے فرسٹ ڈیجٹ سے ڈینوٹ کرتے ہیں، اور اس وائی ایکسس کو ہم سیکنڈ ڈیجٹ سے ڈینوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ دیکھیں اب یہی چیز جو ہے آپ کے میتھمیٹکس میں میٹریسز کے چیپٹر میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جب ہم کرتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے لکھا ہوتا ہے، دیکھیں وہاں پہ لائک اس طرح کا میٹرس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ایکس ایکسس یہاں پہ ہوتا ہے اور وائی ایکسس نیچے ہوتا ہے۔ 1 ڈائمینشن ہے ایکس ایکسس اور ایک ڈائمینشن جو ہے اس کا ہے وائی ایکسس، تو another dimension is
द वाई एक्सिस। अब दोनों को मिलाकर हम इसको 2 डायमेंशनल सिस्टम भी कह सकते हैं। भाई देखें कि यहाँ पे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू एक्स और वाई। तो मैट्रिसेस में आपने देखा होगा कि ऊपर वाले डिजिट को हम ऊपर के साथ ऐड करते हैं और नीचे वाले डिजिट को हम नीचे वाले के साथ ऐड करते हैं। तो सेम हैपन्स इन द वेक्टर्स। हमने कहा था कि इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और थर्ड इट ओबेज सर्टेन लॉज। कुछ ख़ास इसके कवानीन होते हैं जिसको वेक्टर जो हैं ओबे कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज हमारा कोई वेक्टर है जो कि 1 2 3 4 5 लेट्स सपोज यहाँ पर हैं और देखें अब आपने जब तक दोनों को मिला नहीं लेते तब तक आपने लाइन ड्रा नहीं करनी। 1 2 3 4 तो 4 यहाँ पे हैं तो आपने यहाँ से एक इस तरह की लाइन ड्रा करनी है डॉटेड डॉटेड, ठीक है, और एक यहाँ से ड्रा करनी है। ऊपर से आप एक जो है गिरा दें। नाउ दिस इज 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। एक्स एक्सिस को पहले लिख लें 5 और वो है 4, ठीक है। दिस थिंग कि जो ओरिजिन से यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है। दिस इज नाउ द वेक्टर 5 4। इसको हम अगर लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे 5 कामा 4 स्मॉल पैरेंथेसिस, और अगर हम इसको मैट्रिसेस में लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे 5 4। अब इसकी भी काफ़ी लंबी कहानी है कि ये 5 4 पेयर जो है मैट्रिसेस में फिर हम इसको पढ़ते हैं कि भाई ये जो है ट्रैफिक सिग्नल्स में कैसे यूज़ होते हैं वगैरह वगैरह, तो उसकी तरफ फ़िलहाल नहीं जाते। दिस इज़ द 2 डायमेंशनल सिस्टम। भाई अगर आपको कोई कहें कि 3D वेक्टर कैसे ड्रा करेंगे तो 3D का वेक्टर मैं तरीका बता देता हूँ। देखें यहाँ पर आपको ड्राइंग के लिए या आगे चैप्टर्स में 3rd डायमेंशन की भी ज़रूरत होगी। सो दैट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। भाई अगर आपको कोई कहे कि भाई इसमें z एक्सिस बताओ, दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस, नाउ द z एक्सिस इज़ ओवर हियर आपकी तरफ, ठीक है भाई। और देखें ये x एक्सिस हैं, इसके दूसरी साइड पर है नेगेटिव x एक्सिस। दिस इज़ नेगेटिव x एक्सिस। 1 2 3 4 5 ड्रा करते जाएं। दिस इज़ नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज़ नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है भाई। अगर इस तरह का कोई वेक्टर ड्रा कर दे तो इसका मतलब होता है x और y, और अगर इस साइड पे कोई ड्रा कर दे तो x और नेगेटिव y, यहाँ पे कोई ड्रा कर दे तो y और नेगेटिव x, यहाँ पे कोई ड्रा कर दे तो नेगेटिव x और नेगेटिव y। सवाल तब पैदा होता है जब आपसे कोई कहें कि भाई आप इस पे z एक्सिस ड्रा करें जो कि आपकी तरफ है। तो इसको ड्रा करने का तरीका सिंपल है, आपने उससे डरना नहीं। वो ऐसे हैं, आपने रूलर यहाँ पे पकड़ा, स्केल आपने यहाँ पे ओरिजिन पे पकड़ा, अब आप इसके ऊपर शाइन करेंगे लाइट। तो ये स्केल और ये हुआ उसका लाइट। जहाँ पर आप देखें ये है, लेट सपोज मैं 2 पे करता हूँ तो तकरीबन यहाँ पे आता है, तो ये इस तरह होता है। दिस इज z एक्सिस। Now this z-axis does not mean in x and y axis. It means it is moving outside. It is moving away from the board, away from the paper. And if it's negative z-axis, so it is moving inside the board, right? तो ये हमने 2 डायमेंशन तो डिटेल में बता दिया है, 3D थोड़ा सा बता दिया है। ये n डायमेंशनल तक चला जाता है। जितने डायमेंशन ज़्यादा होंगे उतना वो चीज़ आपको लाइव दिखेगी। 2 डायमेंशनल में हम पिक्चर देखते हैं, 3 डायमेंशनल में हम मुजस्मे देखते हैं, और n डायमेंशनल में हम जिंदा चीज़ों को देखते हैं। अब n डायमेंशनल कैसे होते हैं वो आगे की कहानी है। अच्छा जी, इसके x और y एक्सिस को बताने के बाद इसमें कुछ कहानियाँ हैं जो रहती हैं, वो कुछ अगले चैप्टर में करेंगे और कुछ यहाँ पे करते हैं। इसके कुछ टाइप है वो मैं बता देता हूँ। एक है नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव फॉर वेक्टर।
नेगेटिव भाई वेक्टर का मतलब ये नहीं है कि वो सारा उल्टा हो जाता है। नेगेटिव ऑफ वेक्टर मतलब ये है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाए। लेट सपोज अगर वो हैं 5 4 इस तरफ हैं, लेट सपोज 5 4 इस तरफ हैं, तो नेगेटिव का मतलब ये है कि इसका रिवर्स जो है वो आप डायरेक्शन जो है वो आप रिवर्स कर लें, यानी 5 4 इस तरफ कर लेते हैं। इसी मैग्नीट्यूड का है लेकिन डायरेक्शन रिवर्स है, यानी ये हो जाएगा -5 -4। ठीक है। इसी तरह एक वेक्टर आपको मिलेगा यूनिट वेक्टर, इसको नॉर्मलाइज्ड वेक्टर भी कहते हैं, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। यूनिट वेक्टर उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी इसका नंबर 1 हो, और साथ में रिमेंबर वो खालिस एक ही एक्सिस का हो। कि अगर मैं इस तरह करूं कि लेट सपोज यहाँ पे इतना वेक्टर ड्रा कर दूं, सो दिस इज यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पे ड्रा कर दूं तो दिस इज यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस, एंड अगर यहाँ पे ड्रा कर दूं बाहर की तरफ यहाँ तक, सो दिस इज यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस। ठीक है भाई। तो नॉर्मलाइज का मतलब होता है कि भाई हमें पता है कि अ वेक्टर इज मेड फ्रॉम ये मैग्नीट्यूड, बगैर एरो अगर आप लिखेंगे तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, यानी उसका नंबर और उसका जो यूनिट है, और अगर आप उसके ऊपर कैप डालते हैं, सो दिस इज व्हाट वी कॉल यूनिट वेक्टर या नॉर्मलाइज वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है भाई। ये उस एक्सिस के साथ 0 एंगल बनाता है। इसी तरह एक और वेक्टर है नल वेक्टर। अगर इसकी कहानी की जाए तो भाई ये बेसिकली एक वेक्टर है कि जो कि ओरिजिन पर ही पाया जाता है, 0 0 पर पाया जाता है, और इसका जो क्या नाम है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो है 0, गायब नहीं 0। ये 0 का कॉन्सेप्ट जो आया है वो अरब से पहले नहीं था। अरब रोमन्स में और जो ग्रीक और लैटिन हैं इनमें जो है 0 का कॉन्सेप्ट नहीं था। तब कहानी शुरू होती थी 1 से। मुसलमान जब आए तो उन्होंने 0 का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। मुसलमान कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है भाई। तो ला 0 इलाह गॉड, कि देयर इज नो गॉड इल्लल्लाह, ओनली अल्लाह। तो अल्लाह की सिर्फ हैं, दूसरा खुदा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह का कंसेप्ट जो है ये अरब को ज़्यादा समझ आता था। देखें यहाँ पे मैं थोड़ा सा उस सिनेरियो में जाऊँगा, आपके लिए फ़ायदा होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का कंसेप्ट ये है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। एक होता है अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, मतलब और थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, और एक होते हैं ला इलाह कि दूसरा खुदा का पहले कंसेप्ट ही ख़त्म कर लो, देन इल्लल्लाह, फिर अल्लाह का कंसेप्ट आएगा। जैसे हम कहते हैं कि भाई रिवर्स का गियर ख़त्म करो तब जाके फॉरवर्ड गियर आएगा, या फॉरवर्ड का गियर ख़त्म करोगे तब जाके रिवर्स आएगा। कि पहिया जब आगे से मूव करना बंद ना कर दे, ख़त्म ना कर दे, तो वो रिवर्स की तरफ मूव कर ही नहीं सकता। सो दिस कंसेप्ट इज़ द 0 कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट इज़ द नल कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट इज़ द ला कंसेप्ट। जो ला कहा तो ला हुआ, वो ला भी इसमें ला हुआ, जुज़ ला कहा खुल ला हुआ, फिर क्या हुआ अल्लाह हुआ। भाई इस विक्टर्स की कहानी जो है आगे आने वाली है। यहाँ तक हमारी कहानी आई जेड एक्सिस और वाई एक्सिस की। इसी जेड और एक्स और वाई एक्सिस को यूज़ करके हम जो है आगे कहानी करेंगे डिस्टेंस की, फिर डिस्प्लेसमेंट की, और फिर जाते जाए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंशाल्लाह डिस्टेंस। फ़ी अमानिल्लाह।